हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय क्लासेस। और हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कुछ और प्रॉब्लम्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड हैं। तो उनमें से एक प्रॉब्लम है 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट. They coalesce to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. Number of drops 27. Potential of each drop this is 220 volt. Now they coalesce and make a big drop. The concept is volume of 27 drops, volume of 27 small drops is equal to volume of a big drop. 27 volume 27 into volume of one big drop is equal to 27 into volume of one small drop is equal to volume of one big drop. The reason behind that, 27 drop will make one big drop. So 27 4 by 3 pi r cube is equal to 4 by 3 pi capital R cube. 27. Finally we can write, you can write here n. Finally we can put the value of n, that is 27. 4 by 3 will be cancelled and capital R cube is equal to n R cube. Capital R cube is equal to n R cube. R is equal to n to the power 1 by 3 R. This is the relation between radius of big drop and radius of small drop. Now, let the value of charge, the charge on one small drop is small q, then charge on big drop n q, because this n drop will make one big drop. So what is the total charge on the big drop? That is n q. The potential of small drop, potential of small drop, V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught small q upon small r. Potential of big drop, V dash is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q upon capital R. This is the potential of big drop. Now, capital Q is NQ and capital R is n to the power by 3 into R. Replace this value. You will get the result. V dash is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught n cube upon n to the power 1 by 3 small r. B dash is equal to n to the power 2 by 3. ऊपर जाएगा तो -1 by 3, तो कितना होगा 2 by 3 हो जाएगी पावर. 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. This value can be written as V. ये वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है? V.
तो v dash is equal to n to the power 2 by 3 v. v dash is equal to 27 whole power 2 by 3 and v is 220 volt. The answer will come in volt. What is the answer? Answer is 27 whole power 2 by 3. Replace 1 by 3. 27 की पावर 1 by 3 कितना हुआ? 3. 3 की पावर 2, 9. So V dash is equal to 9 into 220 volt. This result is important for multiple choice question. If n small drop, each having potential V, they coalesce with each other and make a big drop. The potential of the big drop V dash is equal to n to the power 2 by 3 into potential of small drop. So you can note this formula for MCQ question, and V dash will come 9, 0, 8 and 9 volt. This is the answer. This is the way to solve this question, and you can note in your copy for practice. तो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ काम बनेगा, वरना बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। केवल देख लेने से आप समझते हैं कि आपको आ गया, आप एग्जामिनेशन में कर देंगे सवाल को, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये रहा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर having charges 100 microcoulomb minus 50 microcoulomb plus 20 microcoulomb and minus 60 microcoulomb at the four corners of a square. ये क्वेश्चन 2 बार बोर्ड में आ चुका है। वैसे सिंपल है, लेकिन कभी कभी आप गलती कर देते हो। वो क्या मिस्टेक रहती है? ये साइड दी है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक सपोर्टिंग डायग्राम, एक डायग्राम जरूर आप बनाएं अगर पॉसिबल है तो। ये स्क्वायर, इसकी ये साइड है, मान लीजिए ए, इसके 4 कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस रखे हैं। एक Q1, पहले का नाम Q1 दे देते हैं तो 100 माइक्रोकूलम है। दूसरे को हम Q2 कह देते हैं, माइनस 50 माइक्रोकूलम है। इसे Q3 कह देते हैं, और ये है 20 माइक्रोकूलम, और Q4 है माइनस 60 माइक्रोकूलम। कहो तो A B C D लिख देते हैं। अब यहां पर इसके सेंटर, यानी हम O कह देते हैं सेंटर को, इस पर पोटेंशियल निकालना है। तो फिर सेंटर से चार्ज की डिस्टेंस भी आपको चाहिए होगी, इसे मान लेते हैं R। तो स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो आप आराम से लगा सकते हो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। 2R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, R इज इक्वल टू A अपॉन रूट। A आपके पास कितना है? √2 है, √2 मीटर, √2 अपॉन √2 मीटर, दैट इज 1 मीटर। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आपको ये याद रहता है तब, अदरवाइज आपके सामने ये डिस्टेंस आ गया। और आपको कितना क्या करना है, टोटल V आएगा आपके पास। V मींस V1 अलजेब्रिक सम होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें वेक्टर सम मत करिएगा। प्लस चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और माइनस सोर्स चार्ज के कारण पोटेंशियल माइनस का होता है, नेगेटिव होता है। आप इसे वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रखते समय जो कांस्टेंट है वो सभी में होगा। इसको हम बाहर एक बार में ही लिख देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, Q1 अपॉन R प्लस Q2 अपॉन R प्लस Q3 अपॉन R प्लस Q4 अपॉन R। अब चाहूं तो सब में ही डिस्टेंस बराबर आ रहा है,
तो आप चाहो तो आर को भी बाहर 1/4πε0 आर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब एक गलती मत कर देना भाई, माइक्रो कूलाम में है, इसे कूलाम में चेंज जरूर कर लेना। ऐसी मिस्टेक देखी है और होती है मिस्टेक, बात बहुत छोटी सी है लेकिन ऐसी मिस्टेक होती है भाई। एसआई में आपको चलाना है सवाल तो आप कूलाम में इससे रिप्लेस करेंगे, ना कि माइक्रो कूलाम में रखकर आगे बढ़ जाएंगे, गलती हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट की आप जानते हैं अच्छी तरह, कितनी होती है 9 × 10⁹। आर कितना था आपके पास, अभी है 1, और ये कितने हुए 100, दूसरा कितना है -50, थर्ड कितना है +20 और फोर्थ कितना है -60। बोले सर आपने तो कूलाम में चेंज नहीं किया, 10⁻⁻6 से चेंज होता, ये लिख दिया मैंने 10⁻⁻6। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा भी आपके पास। 9 × 10⁻³ 120 और ये कितना हुआ 110, ये कितना आया 10। तो V is equal to 9 × 10⁴ volt is the answer. This is the potential at the center of this square. बस क्वेश्चन पूरा ही फार्मूला बेस्ड था जो आपके पेपर में आया, लेकिन जो मिस्टेक होती वो आप इसे कूलाम में चेंज नहीं करते या आप कभी ध्यान नहीं देते, तो ये आप ये रखनी है डिस्टेंस, ना कि साइड। स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर था, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत छोटा सवाल है लेकिन बोर्ड में 2 बार आया है, इसलिए मैंने आपके सामने ये डिस्कस किया। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है 3 points A, B and C lie in a uniform electric field E of 5 × 10⁻³ Newton/Coulomb as shown in the figure। ये फिगर क्वेश्चन के साथ। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पहला पार्ट बिटवीन A एंड B, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पहला पार्ट A एंड B, दूसरा पार्ट B एंड C, तीसरा पार्ट A एंड C। तो यहां पर आप देखिए कि आप इसको कैसे फाइंड करेंगे। मैं 2 तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। एक जो छोटा तरीका होगा वो आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा, या समझ में दोनों आएंगे, लेकिन शायद आप सोचेंगे कि इतने कम स्टेप में हो रहा है तो सर ने इतने लेंथी स्टेप क्यों दिए। वो जरूरी है आपको फार्मूला का एप्लीकेशन सीखने के लिए। तो आप देखिए सबसे पहला पार्ट हम यहां कंसीडर करते हैं बिटवीन A एंड B, A एंड B। तो भाई आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो आप आसानी से लगा सकते हो E = B/B। लेकिन मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए और V का मतलब है हायर पोटेंशियल टू माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी कि। और दूसरी बात, A और B में किसका पोटेंशियल हायर होगा, तो आप जैसे जैसे फील्ड के अलोंग बढ़ते चले जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज, कम होता चला जाएगा। इस हिसाब से A हायर पे होगा और B लोअर पे होगा। ये फार्मूला हम लगाना चाहें तो यहां पे हो जाएगा VA - VB/D। तो VA - VB बराबर कितना आएगा E × D। E कितना है, E आपका है 5 × 10⁻³ AB कितना है आपके पास 4 सेंटीमीटर, गलती मत करिएगा सेंटीमीटर में है, 4 × 10⁻⁻²। तो कितना आ गया भाई VA - VB आया 20 और यहां से 10, 200 वोल्ट। दिस इज द आंसर। VA - VB इज 200 वोल्ट।
अब इसी सवाल को थोड़ा ज्यादा स्टेप्स में करते हैं, देखिएगा। OR करके सॉल्व कर रहा हूं। dV का मतलब होता है माइनस E डॉट dr, यहां से देखिएगा, इसको लगा सकते हैं। अब dV इज इक्वल टू E डॉट dr है, तो इसको हम x एक्सिस यानी कि लेट दिस इज x, दिस इज y। तो E को वैल्यू दे रखी है हमारे पास, E वैल्यू में, हम इसे वेक्टर में लिखना चाहते हैं, हमने इसे x मान लिया। E इज इक्वल टू हमें लिखना होगा 5, या हम वैल्यू नहीं तो ऐसे लिख लो आप, E I पे, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को क्या माना है, x माना है, और इसको y माना इस फिगर में। तो वैल्यू दे रखी थी, हमने इसे वेक्टर में लिख दिया। अब dr का मतलब क्या है, dr वेक्टर, ये है वेक्टर a b। dr जो वेक्टर है वो वेक्टर यहां a b से दिखा रहा है। अब इसको आप कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, वो भी बात समझ में आना चाहिए। इफ O is the origin, AB vector is written as O B minus O A, O B minus O A, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ए बी वेक्टर आपका है वो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। अब बोले OB वेक्टर हम कैसे लिखें, OB माइनस OA यहां पर हमने लिख दिया, तो इसे DR वेक्टर को आप कैसे दिखाओगे। मैं डायरेक्ट चाहूं तो डायरेक्ट लिख दूंगा, AB x के अलॉन्ग है, और कितना होगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 I कैप, कितना होगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो O इज द ओरिजिन, AB वेक्टर आपको दिया जाएगा इससे, ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि यही सवाल अगर इनकी लोकेशन नहीं होती आपको ज्यादा फायदा हो गया। डायरेक्ट डिस्टेंस दिया है, ये मैंने यहां पर लिखा O इज द ओरिजिन, तो AB लिखने का तरीका क्या होगा, यहां तो आपको AB की लेंथ डायरेक्ट दे रखी है, और किस डायरेक्शन में है वो x डायरेक्शन में है, तो dr का मतलब AB, और AB का सीधा मतलब आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 I कैप, यूनिट होगी मीटर। ये रहा आपके पास dr वेक्टर। अब dr वेक्टर मालूम है, E वेक्टर मालूम है, dV निकालना है। dV का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। dV का मतलब है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। आप A भी बात कर रहे हैं तो फाइनल B हुआ, dV का मतलब ये। और dV का फार्मूला क्या बना, माइनस E डॉट dr, dV निकाल लिया। dV का मतलब क्या हो गया, BB माइनस BA। E का मतलब कितना हो गया, या तो EI कैप, डॉट dr का मतलब कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 I कैप, डॉट लगा है। ध्यान रखिएगा वैल्यूज में सिंपल मल्टीप्लाई होता है, डॉट या क्रॉस वेक्टर्स के बीच होता है। अगर डॉट या क्रॉस में आपको दिक्कत है तो मेरे 11 के प्लेलिस्ट में देखिएगा, वेक्टर्स
यूनिट 2 में काइनेमेटिक्स में चैप्टर वेक्टर्स दिया हुआ है, उसके 10 लेक्चर्स हैं और 10 लेक्चर्स मैंने कवर किए हैं इसके कंसेप्ट। अब यहां पर बात कर रहे हैं आप, तो वैल्यूज में आप सिंपल मल्टीप्लाई करती है, यहां पर आपने वैल्यू रख दी तो यहां पे भी आप वैल्यू रख सकते थे, मैंने यहां लिखा, यहां पर एक स्टेप बढ़ा देता हूं तो यहां पर आएगा आपका e की वैल्यू आपको दी थी 5 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप न्यूटन अपॉन कूलम। तो आप चाहें यहां पर डायरेक्ट वैल्यू रख सकते थे, अगर हम वैल्यू रख दे माइनस e कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप डॉट 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आई कैप, कितना आएगा? वैल्यूज के बीच क्या होगा? सिंपल मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा आपका, और आई डॉट आई कितना होता है 1, जे डॉट जे कितना होता है 1, के डॉट के कितना होता है 1, लेकिन आई डॉट जे कितना होता है 0, ध्यान रखिएगा। जे डॉट के कितना होता है 0, के डॉट आई कितना होता है 0। तो यहां पर आई डॉट आई 1 हो गया और ये सिंपल मल्टीप्लाई होगा, आपके पास 200 वोल्ट आएगा। ये रहा आंसर। बोले सर यहां पर तो माइनस 200 वोल्ट आया, यहां तो 200 लिखा हुआ है, तो भाई ये लिखा है बी ए माइनस बी बी, आपका आंसर आया है बी बी माइनस बी ए, ओ आर करके लिख सकते हैं बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू 200 वोल्ट। दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए कौन रह गया दूसरा पार्ट। तो यानी कि इतना सा ही क्वेश्चन था और इसको इतने लेंथी तरीके से बताया गया आपको, तो मेरा मतलब केवल ये नहीं है एग्जामिनेशन में आप ऐसे ही कर दिएगा, लेकिन ये चीज आपको आनी चाहिए कि इस तरीके से dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का कैसे यूज करते, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड है बिटवीन बी एंड सी। ये है, तो यहां पर आप कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर मैं यहां पर E इज इक्वल टू V अपॉन डी लगाऊं, तो D आप लेंगे, V जो भी आ रहा हो, D लेंगे 3। बच्चों ध्यान रखना ये गलत हो जाएगा। मैंने लिख दिया यहां पर E वैल्यू आपको पता थी, V का मतलब आप शायद B माइनस सी लगाएंगे, और यह 3 अगर आपने रख दिया तो गलत हो गया। बोले सर क्यों? फिर सुनिए इसकी कहानी। D इज द डिस्टेंस अलोंग द फील्ड, D इज द डिस्टेंस, तो E इज इक्वल टू V अपॉन डी लगाने का नियम क्या है? एक तो फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, दूसरी बात ये डिस्टेंस D अलोंग द फील्ड है, और V 2 पॉइंट बनेंगे, उस डिस्टेंस के 2 एंड पॉइंट्स बनेंगे, उसमें हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल है V। तो बोले सर ये कैसे करेंगे? देखो इसे मैंने लिखकर काटा है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ऐसा किया कि आपको ध्यान रहे कि यहां पर D अलोंग द फील्ड नहीं है। तो यहां पर एक तरीका हो सकता है, आप लिख सकते हैं VB इज इक्वल टू BC, और कारण लिख सकते हैं यहां पर बोथ BC is perpendicular to E. There is no displacement along oblique opposite to the field. ये इतना ही लिख दिए आप लास्ट वाला सेंटेंस
कि आपने बी और सी को क्या कर दिया, बराबर कर दिया पोटेंशियल, और कारण लिखा कि देयर इज नो डिस्टेंस अलोंग या ऑपोजिट टू द फील्ड। या आपने इसके अलावा सेंटेंस लिखा, ये न लिखकर आपने लिखा when we move normal to the field there is no change in the potential। बस एक सेंटेंस लिखकर आपने बात बराबर कर दी, और बी बी माइनस बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। दिस इज द आंसर। आपने क्या एक सेंटेंस लिखा, इफ वी मूव, अगर या तो ये लिख दें, ए बी की वही बता रहा है, इफ वी मूव नॉर्मल टू द फील्ड देयर इज नो चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस। अब बोले सर फार्मूला यूज करके दिखाओ, तो dv इज इक्वल टू E माइनस E डॉट dr, here E perpendicular to dr, dv means minus E dr cos 90 degree, dv means 0, यानी vb माइनस बी सी, या बी टू सी गए थे आप, तो बी सी माइनस बी बी इज इक्वल टू 0। अगर ये भी 0 है तो बी बी माइनस बी सी भी 0 है। जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम इसे पाने। बी सी वेक्टर, डी आर क्या चीज है मैं आपको फिर बता दूं, डी आर यहाँ बी सी वेक्टर है, या अगर इसमें आप लिखें तो डी आर क्या है, दैट इज बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर क्या है, ई के नॉर्मल है, और cos 90 के कारण क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, क्योंकि फील्ड के नॉर्मल सभी लोकेशन जितने भी होंगी उनके पोटेंशियल सेम होंगे। अब तीसरा आया बिटवीन ए एंड सी, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तीसरे पार्ट की बात करते हैं, बिटवीन ए एंड सी। वो देखिए, थर्ड बिटवीन ए एंड सी, इसकी बात करें। E is equal to V upon D, V is equal to E over D, where D is the distance along the E, along the E। तो भाई ये along the E नहीं कहलाएगा। जब 5 सेंटीमीटर देखा, दिस इज नॉट अ डिस्टेंस, आप गए ऐसे वाली, लेकिन ये along the E नहीं होगा। V का मतलब वी ए माइनस बी सी, ई का मतलब 5 into 10 to the power 3, this is along the E will come only 4 centimeter, 4 into 10 to the power minus 2, VA minus BC becomes 200 volt। ये रहा आपके सामने आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब बोले सर इसमें भी लगा दिए आप, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर, उसको लगा दीजिए। dv is equal to minus e dot dr, it means dv is equal to minus e dr cos theta। अब dr क्या है यहां पर मैं बता दूं, ये dr आपके पास AC वेक्टर है, और E किधर है, E इज द अलोंग AB है। तो मेरा कहना ये है
कि ई और डी आर के बीच बनने वाला एंगल ये है थीटा। भाई ई का डायरेक्शन ए बी के अलॉन्ग है और एसी ये है, और डीबी का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना भाई, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल होगा। तो आप रख दिए VC माइनस VA माइनस ई कितना था 5 इंटू 10 टू द पावर 3 और DR की वैल्यू कितनी है, अब आप यही रखेंगे भाई, DR की वैल्यू तो यही हुई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो cos थीटा भी रखना पड़ेगा। cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस ये होगा सामने का परपेंडिकुलर होता है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये रही cos थीटा की वैल्यू। तो वो ये कैंसिल हुआ, आप वहीं के वहीं आए, VC माइनस VA इज इक्वल टू माइनस 200 वोल्ट, और अगर इसे BA माइनस BC लिख दो, दिस इज 200 वोल्ट, दिस इज द आंसर। तो आपको हर पार्ट में दो दो तरीके से सॉल्व करके दिखाया कि dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट DR का यूज कैसे करेंगे, और E इज इक्वल टू V अपॉन D। तरीका आप कोई भी अपनाइए, बस मेरा कहना यह है कि वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, ये बिल्कुल कि जो यूज कर रहे हो तो वो क्या स्टेप होना चाहिए, किस तरीके से लिख रहे हैं, ये आपको आना चाहिए। चलिए इस सवाल को जरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल दें। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये वैल्यू नहीं दी, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है, मान लीजिए ए पॉइंट है 0, 0, बी पॉइंट है 4 सेंटीमीटर, 0, 0 मतलब 0 सेंटीमीटर, जो कोऑर्डिनेट्स है वो सेंटीमीटर में है, और सी है -3 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर, ये आपने पहले, हाँ 4 सेंटीमीटर कॉमा -3 सेंटीमीटर, ये सी का कोऑर्डिनेट है। तो मैं एक सवाल करके दिखा देता हूं कि डिमांड है, सवाल को चेंज कर दिया है हमने, आंसर वही आएगा, दोनों के बीच 4 है, यहां से यहां तक का गैप 3 है, और फिर ये 5 होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते। मैं आपको सवाल चेंज किया, उसने डिस्टेंस ना देकर इनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, और सीधा मैं ये थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व बिटवीन ए एंड सी। मैं आपको यह एक चीज बता दूं, अगर P का लोकेशन x1, y1, z1 है, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2 है, तो आप PQ वेक्टर कैसे लिखोगे? अब PQ वेक्टर लिखने के लिए एक ओरिजिन मानना पड़ेगा, आप PQ लिखोगे OQ माइनस OP। अब बात आती है OQ कैसे लिखोगे और OP कैसे लिखोगे। OP where O is the origin, और ओरिजिन के O is the origin मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हुए 0, 0, 0। तो OP लिखने का तरीका होगा x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। OQ लिखने का तरीका होगा x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। भाई ये बहुत जरूरी आइटम है,
अगर किसी को भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वेक्टर्स के मेरे अगर लेक्चर देख लेंगे और उनसे एट ए ग्लैंस बना लेंगे तो डेफिनेटली आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन बिना वेक्टर एनालिसिस को सही किए हुए आपकी फिजिक्स कभी भी स्ट्रांग नहीं होगी। और जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे वेक्टर कभी भी किसी समय भी यूज हो जाएगा। तो ये आप जरा एक बार पढ़ लीजिएगा, जहां पर टॉपिक है पोजीशन वेक्टर, तो वहां आपको मिल जाएगा। तो यहां पर हमने ये लिखा OP x1i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब आप PQ निकाल लिए, वैल्यू रख दिए, ये माइनस ये, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। PQ वेक्टर आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इस तरीके से ये फाइंड किया जाता है। तो इसको आप अगर दिमाग में रखेंगे तो वही काम चल जाएगा। फिलहाल हम अपने सवाल पे आते हैं। सवाल है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अगर दो के कोऑर्डिनेट मालूम हो तो एक चीज और बताता हूं मैं आपको। P का मान लिए है x1 y1 z1 तीन कोऑर्डिनेट है, और एक पॉइंट Q है उसका है x2 y2 z2। ये है PQ लेंथ निकालनी हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। तो ये रही आपके पास कुछ फार्मूले, अगर ये इसकी लोकेशन में दे रखा होगा। अब देखिए थर्ड पार्ट बिटवीन A एंड C। A एंड C ये आपको फाइंड करना है। अगर मैं दो ही स्टेप में बताऊं तो वही अलोंग द फील्ड E is equal to V upon D। Here D is the distance along the field, D is AB, D is AB along the field, distance along the field वो आएगा AB is equal to 4 सेंटीमीटर। बाकी आप कर ही लोगे। E की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻³ बोले सर ये कैसे लिख दिया आपने? आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर डिस्टेंस नहीं निकालना आ रहा तो मैं यहाँ पर एक स्टेप और दिखा देता हूँ। 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये आपका 4 सेंटीमीटर सॉल्व किया गया। तो ये अराउंड द फील्ड है डिस्टेंस, तो E इतना है। V का मतलब VA माइनस BC होगा। D आप 4 × 10⁻² रख देंगे, आपके पास तो 200 वोल्ट आ जाएगा। फिलहाल dV को कैसे यूज करते हैं वो देखिएगा। dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr को आप कैसे यूज करते हैं उसे देखिए। dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। E मैं लिख रहा हूं, E हो गया 5 × 10⁻³ I कैप न्यूटन अपॉन कूलम। क्योंकि आपने इसे x नाम दे सकते हैं, ये बढ़िया, ये आप मानकर चल रहे हो। अब आपको लिखना है dr। dr का सीधा मतलब होगा AC, और AC आप कैसे निकाल सकते हो? ये आपको AC वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? तो आपको OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर करना होगा। बोले सर OC वेक्टर कहां से लाए? आगे 4 I कैप माइनस 3 J कैप, अभी लिख के दिखाएगा। माइनस
ये कितना हुआ 0 i कैप प्लस 0 j कैप। तो आपके पास AC वेक्टर कितना आया या dr वेक्टर कितना आया 4 i कैप माइनस 3 j। E आपके पास है, डॉट प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। अब आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। E भी वेक्टर फॉर्म में है, देखिए dr भी वेक्टर फॉर्म में है। O क्या है ओरिजिन, कैसा लिखा अभी मैंने दो फार्मूले लिख के दिखाए थे कि OC कैसे लिखा मैंने, C के कोऑर्डिनेट्स दिए थे, ये x ये y, x i कैप y j कैप, ये लिखा है। 0 0 थे, 0 i कैप 0 j कैप, 0 ही है क्योंकि ओरिजिन दे दिया उसने। ये आ गया आप पे। अब लगा दीजिए आप यहाँ पर dB इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। dB का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। E कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 3 i कैप डॉट dr कितना है 4 i कैप माइनस 3 j कैप। अब मैंने आपसे कहा वैल्यूज के बीच में सिंपल मल्टीप्लाई होता है डॉट या क्रॉस, तो आई कैप जे कैप वेक्टर्स के बीच होता है। बोले सर इसमें जे कैप नहीं दिखाई दे रहा है, फिर वही समस्या आई। आपको डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही तरीके से आनी चाहिए। फिर आप सोचेंगे सर ने इतना लेंथी मेथड से कराया, इतना टाइम लिया क्वेश्चन पे। बात समय की नहीं है मैंने कितना टाइम लिया, बात है अगर आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको इस तरीके का भी सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए और उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर भी मैं स्टेप यहाँ ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर लिख रहा हूं, आप उसे कम कर सकते हैं। BC माइनस BA माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 3 i कैप प्लस 0 j कैप, फालतू में लिख लिया 0 इंटू j, कुछ नहीं कर पड़ जाए। डॉट डॉट लगाना मत भूलिएगा 4 i कैप माइनस 3 j कैप। अब आप डॉट लगा दिए डॉट प्रोडक्ट। फिर आपको याद आना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है। BC माइनस BA इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह I के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा और J के कोफिशिएंट का होगा। I का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू सिंपली 4। बेटा 4 इंटू 4 यहाँ पर शायद सेंटीमीटर में था, इसे 4 मीटर में ही आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको 10 टू द पावर कितना 3 सॉरी 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई रखना पड़ेगा, या यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ये मैंने शायद भूल गया होगा, उसे ठीक कर दीजिएगा, रह गया तो सेंटीमीटर में थे तो 4 इंटू 10 टू द पावर 2 आएगा i कैप माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 2 आएगा। मैंने उसे बाहर रख दिया, देखो रखा है, उसे आप ठीक कर लीजिए। स्टेप में शायद यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ लिखते समय आपको टाइम लगाना है, SI में लगाना है, तो आप ठीक कर सकते हैं। फिलहाल इस स्टेप को अगर आप चाहें तो 4 इंटू लिख लीजिए, तो यहाँ कितना आएगा सिंपली 4 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस ये आपका जो है ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 टू पावर 2 आएगा। 3 इंटू 0 सिंपली 0, अब 0 चाहे प्लस में लिखिए 0 या माइनस में लिखिए, उससे फर्क पड़ेगा नहीं। तो BC माइनस BA आया आपके पास, फिर आया एक बार 200 वोल्ट, या VA माइनस BC इज इक्वल टू 200 वोल्ट। तो इसको मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको आप इस मेथड से भी सॉल्व करिएगा। अगर आप फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये आपको आना जरूरी है। भले एग्जामिनेशन में वो शॉर्टकट अपना दीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस समय आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा, आप इसे प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन हर चीज को बहुत समझ के करिए। और अगर आप ये देखेंगे कि सर ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम लगाया,
मेरा सॉल्यूशन मुद्दा नहीं है, मुद्दा है उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर द चैनल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो भैया आप कमेंट जरूर लिखिए, अच्छा लगा, ठीक लगा, कैसा लगा आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। और अगर कोई बाई मिस्टेक अगर कहीं हो जाती है कैलकुलेशन, उसे इग्नोर कर दिए, इतना समझ जाओगे मेरे समझाने पर, ये कहीं अगर मिस्टेक है तो आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।